Good morning, dear students. First, let's do Brahmanad for concentration. Sabdhan Siddha. Om. Om. Santi, Santi, Santi. Swastha. So dear students, again welcome back to your BSM class. In our previous class, we had discussed about the differences between trade and commerce. So I hope all of you go through that video. So if we are discussing, let us discuss some point about the trade and commerce. Okay. So what is the capital requirement in case of trade and in case of commerce? In which part you requires more capital? In case of trade, we requires more capital, and in case of commerce, we requires less capital. Okay. So what is the scope? About the scope point, in case of trade, it has a very limited scope, and in case of commerce, it has a very wide scope. If we discuss about the risk, in case of trade, it covers more risk, and in case of commerce it covers less amount of risk. Okay. So and also you have to write down the various meanings of trade and meaning of commerce. Okay. Students, in this class we are going to discuss another important long question. Okay, another important long question, that is requisites or essentials of a successful business. So we are going to discuss requisites or essentials of a successful business. Requisites और essentials of a successful business. ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों ने एफई में पढ़ा होगा, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में. व्हाट आर द क्वालिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? A person in order to become an entrepreneur, what are the qualities he required? That comes under the qualities on that part. On entrepreneurship you have studied about that, but here we are discussing about the essentials or requisites of a successful business. एक अच्छा बिजनेस बनने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने के लिए आप लोगों को क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप में एक जो क्वेश्चन था क्वालिटीज़, उसके साथ रिलेटेड है. अगर आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको ईजी होगा. अगर मतलब वहाँ पे नहीं पढ़े होगे तब भी यहाँ से पढ़ने के बाद वहाँ पे आप लोग रेफर कर सकते हो क्या है बोल के. ठीक है. So let us discuss the various qualities or the essentials to become a successful business. एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, क्या क्या थिंग्स which we are required. Okay. So the first point is setting objectives. As the point suggests, setting objective. That means we have to set the objective of the business. We have to set the goal of the business. ठीक है. So here the objective refers to the goal. Goal means what is the aim of the business. We have to know what is the aim of the business. Okay. So here it is the responsibility of the management to decide what is the role of the business, what is the aim of the business. Okay. So and after knowing what is to be done, then only the work can be done. अगर मतलब एम्प्लॉय को पता ही नहीं होगा कि वो लोग क्या काम करेंगे तो काम ही नहीं हो सकता है. सो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट और द ओनर टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. एंड दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी नोन टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी को मालूम होना चाहिए कि वो लोग क्यों काम कर रहे हैं, वो लोग क्या काम करेंगे, तो इसके बारे में उन लोगों को पता होना चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक दैट द ऑब्जेक्टिव शुड नोन ओनली टू द मैनेजमेंट.
द ऑब्जेक्टिव शुड बी नोन टू ईच एंड एवरी पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो सपोज मान लो इफ वी आर डूइंग ए प्रोड्यूसिंग बिजनेस, और मतलब हमारा जो मतलब काम है, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं. देन इट मस्ट बी क्लियरली नोन व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, हाउ इट इज टू बी प्रोड्यूस. ये मतलब सारी चीज़ पता होना चाहिए एम्प्लॉई को, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, दैट मस्ट बी नोन टू द एम्प्लॉइज. ओके, उसी तरह ही इफ़ वी आर डीलिंग इन ए सर्विसिंग इंडस्ट्री, अगर मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. सर्विसिंग मतलब जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट, ये लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अस. ओके, सो इफ वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आवर कस्टमर, देन इन दैट केस what type of services we have to provide, that must be known to the employees. Okay, so this is the objective. So you have to remind all the things what we have discussed. In setting objective, it is the responsibility of the management to decide the objective of the organization, and after deciding the objective, then only the workers can do as per the plan. Okay, and that plan also known to each and every person working in the organization. So this is all about your setting objective. So the next point is proper planning. So the second point, that is your proper planning. So what is plan? First we have to know what is planning. Okay, so planning means it is the process of thinking in advance what to do, how to do, when to do and who will do it. So we have to determine हमको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ कब करना है और वो कैसे होगा, कौन करेगा, ये सारे चीज़ मतलब हमको मालूम होना चाहिए. That is called your planning. So planning never indicate what we do in the past. पास्ट में हम लोगों ने क्या किया है उसको हम लोग कभी भी प्लानिंग नहीं करेंगे. तो प्लानिंग इज ऑलवेज रेफर्स टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं. प्लानिंग डज नॉट रेफर्स टू द पास्ट. ओके, पास्ट के लिए हमको कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है. लेकिन हम लोग किसके लिए प्लानिंग करेंगे, प्रेजेंट के लिए प्लान करेंगे, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे. ठीक है, अभी जैसे कि आप सब ने कॉमर्स ज्वाइन कर लिया है, तो कॉमर्स में अभी आपको जानना पड़ेगा कि बीएसएम क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में कैसे मतलब आप लोग एंट्री पास करेंगे, अकाउंटिंग कैसे ठीक से समझेंगे, बीएसएम के जो टॉपिक है उसको कैसे याद रखेंगे, बिजनेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं. तो आप लोगों का अभी प्लानिंग करना है कि हम लोगों का जो फाउंडेशन कोर्स है, जो अभी हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उसको कैसे हम लोग अच्छे से जान पाएंगे. वो जब तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में तुम लोग जब क्लियर हो जाओगे तभी जाके तुम्हारा सेकेंड ईयर और फ्यूचर में जो भी तुमको कोर्स करना है वो इजीली हो पाएगा. लेकिन अगर तुम्हारा फाउंडेशन ही नहीं रहेगा स्ट्रांग, तो वहाँ पे तुमको प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आएगा कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है, उसके बाद प्रॉब्लम्स आएगा. तो इसीलिए अभी आप लोग किसके बारे में सोच रहे हैं, आपके प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं. प्रेजेंट के बेसिस पे किसके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट या फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में हम लोग सोच रहे हैं. ठीक है, सो प्लानिंग इज ऑलवेज रेफर्स टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो इन प्लानिंग वी हैव टू फोरकास्ट एंड लेइंग डाउन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. वी हैव टू फोरकास्ट. फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, फोरकास्ट मीन्स वी हैव टू प्रेडिक्ट और वी हैव टू एज्यूम एंड लेइंग डाउन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स फ्यूचर में हमको क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है, क्या क्या काम करना है, उसको हम लोग सोच रहे हैं कहाँ पे, प्रॉपर प्लानिंग. तो एक बिजनेस को हम लोग सक्सेसफुल बिजनेस कब बोलेंगे, जब उसमें प्रॉपरली प्लानिंग हुआ होगा. ठीक है, जैसे कि मतलब मान लो अभी SSBM MK नगर, तो SSBM में जो इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट के पीछे उसका रीज़न क्या है, रिजल्ट के पीछे रीज़न है प्रॉपर प्लानिंग. तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो मतलब प्रिंसिपल सर हैं, वो उनके बदौलत वो जो प्रॉपरली प्लानिंग किए हैं, टोटल ईयर में कितने एग्ज़ाम होगा, कितने क्लासेस होगा, कैसे मतलब बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपरली प्लानिंग हुआ है, उसके लिए ये सक्सेसफुल हुआ है आज के लिए. ठीक है, तो बिजनेस में भी सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक प्रॉपर प्लानिंग अबाउट द बिजनेस. व्हाट आर द एक्टिविटीज़ टू बी डन, how those activities are to be done, we have to think about that.
सो बिजनेसमैन को भी सोचना पड़ेगा। देन सो द थर्ड पॉइंट इज साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड मतलब वॉल्यूम, स्पीकर, जो मतलब टीवी में जैसे साउंड बढ़ा रहे हैं, मोबाइल में साउंड बढ़ा रहे हैं, वो वाला साउंड नहीं है। साउंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। सो जनरली ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द बिजनेस, बिजनेस को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोल के बोल रहे हैं, बट हियर द वर्ड रेफर्स टू ए गुड ऑर्गेनाइजर। द बिजनेसमैन शुड बी ए गुड ऑर्गेनाइजर। ओके, सो साउंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? जब वहाँ पे उसका जो ऑर्गेनाइजर है वो ऑर्गेनाइजर अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर का कैपेबल होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये वाला जो वर्ड है ऑर्गेनाइजर, तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जैसे कि मतलब हम लोग एक क्रिकेट का टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये वाला जो वर्ड है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज मीन्स arrangements. Okay, we have to make proper arrangement. Okay, so here जैसे कि मान लो कोई अगर एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे मान लो आपका जो बड़ा होटल है नंदन, आप लोग गए होंगे नंदन होटल में, या फिर मतलब जो और भी बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स है जो बरहमपुर में, अगर आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ पे कितने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग नंदन के बारे में बात करेंगे, नंदन में नियरली अबाउट 30 to 50 एम्प्लॉइज़ आर वर्किंग आर देयर। ये सर नो नियरली अप्रोक्सीमेट, मुझे भी नहीं पता है कितने काम कर रहे हैं, बट अप्रोक्सीमेटली कितने लोग काम कर रहे होंगे? 30 to 50 मेंबर्स आर देयर, एम्प्लॉइज आर वर्किंग आर देयर। सो सपोज मान लो जे एक जगह पे 30 या 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उनका जो मेंटालिटी होगा वो सेम काम करेगा या डिफर होकर काम करेगा? सेम काम करना चाहिए या डिफरेंटली काम करना चाहिए? अभी मान लो घर में आप लोग भाई बहन टोटल 2-3 लोग हो, तो 2-3 लोगों का मतलब मेंटलिटी या फिर जो थिंकिंग लेवल होता है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है? आप जो बोलते हैं आपका भाई उसको अपोज करता है, या फिर आप जो बोलते हो आपकी बहन उसको अपोज करती है, तो वहाँ पे क्या होता है? मेंटल लेवल डिफरेंट होता है। उसी तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उनका जो मेंटल लेवल रहेगा, उनका जो थिंकिंग लेवल रहेगा, वो भी क्या होगा? डिफरेंटली होगा, डिफरेंट होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? देयर मस्ट बी ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजर इज देयर। तो ये ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मालिक मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट क्या करेगा? उन लोगों को सब मिला के कोऑर्डिनेट करेगा, उनको काम देगा, उसके हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको देखेगा, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगा। ठीक है, सो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू सी वेदर ऑल द वर्क्स आर डन और नॉट, वेदर ऑल द एम्प्लॉयज़ आर असाइंड टू वर्क और नॉट। जितने भी एम्प्लॉई है उनको प्रॉपरली काम मिला है या नहीं मिला है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, सो देयर मस्ट बी ए साउंड ऑर्गेनाइजेशन। नो वर्क, दैट मीन्स नो वर्क लेफ्ट अनअसाइंड। कोई भी वर्क को अनअसाइंड करके नहीं रहना चाहिए। जितने भी काम है वो सारे काम डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कि मान लो अभी हम लोग कॉमर्स में एनके नगर में 4 जन काम कर रहे हैं, तो जो 4 वर्कर्स, 4 जो टीचर्स हैं, 4 टीचर्स में से 4 सब्जेक्ट को डिवाइड हो गया है। जैसे कि मैं आपका बीएसएम पढ़ा रहा हूँ, जो श्रीकांत सर है वो अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, पूजा मैम बीएमएस पढ़ा रहे हैं, आदित्य सर एफई पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया? सारे सब्जेक्ट डिवाइड हो गया, सबको इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट मिल गया है। तो वहाँ पे ये मतलब मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि मतलब जितने भी काम है ऑर्गेनाइजेशन में, सारे काम डिवाइड हो गए हैं वर्कर्स के बीच में या नहीं हुआ है। अगर कुछ काम नहीं हुआ है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसको फिर से देना पड़ेगा वर्कर्स को। ठीक है, दैट रेफर्स टू साउंड ऑर्गेनाइजेशन। ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मस्ट बी फॉलोड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम ए सक्सेसफुल बिजनेस। Then the fourth one, proper financial planning. So the fourth point is proper financial planning. So as the name suggests, financial planning, here the word come finance. So we had already discussed about what is finance. Finance is called as the lifeblood of every business.
finance is called as the lifeblood of every business. Why it is called as the lifeblood? Because जैसे कि हम लोगों को जिंदा रहने के लिए, एक आदमी को जिंदा रहने के लिए उसके शरीर में क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। उसी तरह ही बिजनेस को जिंदा रखने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? वी रिक्वायर्ड फाइनेंस। अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं होगा तो हम लोग बिजनेस को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। सो एवरी बिजनेसमैन रिक्वायर्स टू मेक प्रॉपर प्लानिंग अबाउट देयर फाइनेंस। सो फाइनेंस में क्या प्लानिंग करेंगे? व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम व्हिच वी आर रिसीविंग द फाइनेंस एंड व्हाट आर द वेरियस ways where we are investing our finance. So here we have to think about sources and its application. So here we have to think about what are the sources from which we are receiving the funds. क्या क्या sources है जहाँ से हम लोग पैसे receive करेंगे, and what are the sources where we have to अप्लाई द फंड्स। जो फंड्स रिसीव हो गया उसको कहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, कैसे उसको मतलब अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। सो वी हैव टू, द बिजनेसमैन हैज टू थिंक अबाउट द सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड। देखो एक पॉइंट समझ लो, यहाँ पे भी दिया गया है कि एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल बोथ बिकम्स द प्रॉब्लम फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन। एक्सेस ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल ज़्यादा हो गया तो वो भी एक प्रॉब्लम है बिजनेस के लिए, अगर कैपिटल कम हो गया वो भी एक प्रॉब्लम है बिजनेस के लिए। कैसे? सोचो। सेकेंड वाला तो इजी है, सबको मालूम ही होगा। सेकेंड वाला दैट इज योर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। शॉर्टेज मीन्स इफ़ यू रिक्वायर 5 lakhs बट यू हैव ओनली 3 lakh, देन वहाँ पे आपका शॉर्टेज हो गया। आपको चाहिए कितना? बिजनेस करने के लिए 5 लाख चाहिए, लेकिन आपके पास कितना है? 3 लाख रुपए है, तो वहाँ पे शॉर्टेज हो गया। आपका मतलब जो प्लानिंग था वो प्लानिंग के हिसाब से आप काम नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो गया, तो वो एक प्रॉब्लम हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। देन थिंक अबाउट द फर्स्ट वन दैट इज एक्सेस कैपिटल। सपोज मान लो आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, आपको चाहिए 5 लाख लेकिन आपके पास 10 लाख रुपए है, तो क्या करोगे? तो वो एक प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? सोचो। आपके पास 5 लाख रुपए है, नहीं आपके पास 10 लाख रुपए है लेकिन आपको चाहिए 5 लाख, तो वहाँ पे एक्सेस कैपिटल हो गया। चाहिए 5 लाख लेकिन आपको मिल गया 10 लाख, तो वहाँ पे अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे बिजनेस में, वो भी एक प्रॉब्लम बोल के बोला गया है। क्यों? मिला आंसर? आई होप मिल गया होगा। आंसर क्या है? जितने हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, जितना रुपए चाहिए, अगर हम लोग उतना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा है। अगर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, सपोज मान लो आपके पास ज़्यादा पैसे हो गए, आपको चाहिए 5 लाख लेकिन आपके पास 10 लाख हो गया, तो आप क्या करोगे? अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करोगे। जो मतलब नहीं चाहिए वहाँ पे भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे। कैसे? तो मान लो मतलब आपके पास 2 मशीन है, आप तीसरा वाला मशीन खरीद के लाओगे। ज़्यादा पैसे है तो कहीं पे तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तो आप लोग क्या करोगे? तीसरा वाला मशीन खरीद के लाओगे। या फिर मतलब जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, यू कैन परचेज एक्सेस अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। आपको 50 किलो चाहिए, आपने क्या किया? 500 किलो परचेज करके रख दिया, तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है। ओके, सो दैट ऑल्सो लीड टू ब्लॉकेज ऑफ कैपिटल। सो वी हैव टू मेक ए प्रॉपर financial planning, so the owner or the business can be successful if they make a proper financial planning about the funds. Then the fifth point, location and layout of plant. Okay, so that is the fifth point. Here also 2 words are given, that the first one is a location and the second one is layout. So the first one location. Location का मतलब क्या होता है? किसके बारे में लोकेशन बोला गया है? आपका या मेरा? नहीं, यहाँ पे क्या बोला गया है? प्लांट का लोकेशन। प्लांट मतलब जहाँ पे आप लोग इंडस्ट्री बनाए हो, जहाँ पे आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए और उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो लोकेशन, द लोकेशन मस्ट बी a suitable one to bring all the factors of production in the particular location.
तो यहाँ पे आप लोग जो लोकेशन चूज कर रहे हो, द ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मेड अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। जो लोकेशन चूज किए, मतलब हाँ अभी जैसे कि हमारा जो प्रोडक्शन है हम लोग बरहमपुर में कर रहे हैं, तो बरहमपुर में हमको जितना भी सारे रॉ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या, जैसे कि रॉ मटेरियल, एम्प्लॉई, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सारे चीज़ चाहिए। अगर आपके ये सारे चीज़ अवेलेबल हो गया बरहमपुर में तो आप वहाँ पे इजीली प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज मान लो हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है हम लोगों ने कहीं एक पहाड़ के ऊपर लेके रख दिया, जो पहाड़ है उसके ऊपर हम लोगों ने हमारा जो इंडस्ट्री है, जो मतलब प्लांट है, वो कहाँ पे रख दिया, कोई एक पहाड़ में रख दिया या फिर कहीं पे एक जंगल में लेके रख दिया। हमारा जो यूनिट को एस्टेब्लिश कर दिया जंगल में, जहाँ पर कि कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, कोई भी आदमी जा नहीं पा रहा है, आ नहीं पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है या फिर कम्युनिकेशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग प्रोडक्शन कर पाओगे या नहीं होगा, सोचो। So the location should be available at the right place. Right place means where all the factors of production are easily available for the organization. Location भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे गांव में लेके रख दिए तो गांव में ना ही तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन है, ना ही कम्युनिकेशन है, कुछ भी मतलब वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। सो लोकेशन भी अच्छा होना चाहिए। देन द सेकेंड वन दैट इज लेआउट। लेआउट मीन्स जो मतलब हम लोग बोलते हैं जो नक्शा, किसके पास क्या रहेगा। जैसे कि मतलब घर एक बनाते हैं तो घर का लेआउट करते हैं। लेआउट मतलब जैसे कि डाइनिंग रूम रहेगा तो डाइनिंग रूम के पास बेडरूम रहेगा, बेडरूम के पास किचन रूम रहेगा, साइड में बालकनी रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा। ये मतलब जो प्लान बनाते हैं वो क्या होता है, लेआउट होता है। उसी तरह ही बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, सक्सेसफुल बिजनेस होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लेआउट बनाना पड़ेगा। लेआउट मतलब जो जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, जो जो रिक्वायरमेंट है प्लांट के लिए, वहाँ पे सारे चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, किसके पास क्या रहना चाहिए, उसके रिलेटेड वो प्लान करेगा। जैसे कि मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और आपका जो वेयर हाउस है, जो गोडाउन है, वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे है, तो सोचो आपको प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा या नहीं होगा। आपका जो प्रोडक्शन है वो बरहमपुर में हो रहा है और आपका जो गोडाउन है वो गोडाउन जगह है आस्का में, 40 किलोमीटर्स दूर पे है, तो वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगा। यहाँ पे प्रोडक्शन करोगे, लेके रखोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक ए प्रॉपर लेआउट ऑफ ऑल द थिंग्स। जैसे कि मतलब प्रोडक्शन जहाँ पे होगा उसके पास गोडाउन रहेगा, वेयर हाउस रहेगा, उसी के पास ऑफिस बिल्डिंग रहेगा, तो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द प्लांट। So the next point, that is your 6th point, is marketing system. So in marketing system, here the businessman has to think about the proper marketing system which is to be followed in the organization. जो organization है वहाँ पे हम लोग कैसे marketing system को follow करेंगे, ठीक है। So without marketing system, selling is baseless. So if we cannot sell a goods without प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी, अगर हमारे पास मार्केटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, मार्केटिंग फैसिलिटी अच्छा नहीं है, देन वी कैन नॉट सेल द गुड्स। ओके, गुड्स सेल करने के लिए हमको मार्केटिंग सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सो मार्केटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, मार्केटिंग सिस्टम मीन्स वी हैव टू थिंक अबाउट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सोचेंगे, ठीक है। सो द बिजनेसमैन हैज टू थिंक अबाउट द प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, द गुड्स आर डायरेक्टली सोल्ड टू द कस्टमर्स और द गुड्स आर सोल्ड थ्रू द इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज में बी लाइक प्रोड्यूसर, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन द कस्टमर्स। So here the businessman has to think about the channel of distribution, how the goods are sold to the customers, directly or through the middleman. Okay, so advertising, without advertising no product can be sold in the market, so that's why the businessman has to think about its proper advertising facility. So that comes under your marketing system. Then the next one,
7th point, research. So in research and development activity, in order to become a successful business or in order to exist in the particular market, you have to spend money in research and development activity. You have to make research about the market regularly. Okay, so जैसे कि मान लो अभी जैसे कि हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल में अभी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं. सपोज मान लो आपके घर में स्मार्ट टीवी होगा, तो स्मार्ट टीवी में आप लोग डायरेक्टली यूट्यूब को कनेक्ट कर सकते हैं टीवी में, और यही वीडियो आप लोग टीवी में डायरेक्टली देख सकते हैं. सो दैट्स अंडर योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी. Every business has to spend money for research and development of its product. So we have to make research about the product, about its methods of production, about the various items, various methods of production, what are the techniques are applied in the business. So in research we have to think about product, methods of production, latest टेक्नोलॉजी एसेट्रा. सो यहाँ पे बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन सोचेगा कि बिजनेस को कैसे करना है, क्या करना है, रिसर्च करना पड़ेगा, कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर का प्रेफरेंसेस क्या क्या है, उसके हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो द लास्ट पॉइंट, दैट इज योर 8th नंबर पॉइंट, डायनामिक लीडरशिप. So here the point suggests that dynamic leadership. In case of dynamic leadership, leader, it refers to the leader. Leader refers to the owner of the business or the management who manage the organization. So what is the functions of the management? The various functions are like the management has to make proper planning, the management has to make organizing, coordinating, commanding the workers. सो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि नंदन में 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उन 50 लोगों में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे वो लोग अच्छे से काम करेंगे, उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन रहेगा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. सो दैट्स व्हाई द मैनेजमेंट इज मेकिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, coordinating. Okay, these are the various activities which the management has to take out. So that's why it is totally the responsibility of a good leader to make a business successful. So the leader must be, जैसे कि एफई में हम लोग पॉइंट्स पढ़े थे, क्वालिटी में क्या होगा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी क्या होगा, जैसे कि मतलब कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होगा, डिसीजन मेकर होगा, इनोवेटिव होगा, वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, पॉजिटिवनेस उसके अंदर रहेगा, तभी जाके बिजनेस अच्छे से वो कर पाएगा. उसी तरह यहाँ पे डायनामिक लीडरशिप मीन्स, डायनामिक मतलब ऑलराउंडर, ठीक है, तो डायनामिक मतलब जो आदमी सारा काम कर सकेगा, जैसे कि मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, ऑलराउंडर. ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी जनरली उसके पास होना चाहिए. लीडरशिप मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, वहाँ पे उसका फोरसाइटनेस होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, तभी जाके वो बिजनेस को ठीक से कर पाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिक्विजिट्स और एसेंशियल ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेस. हियर वी डिस्कस्ड 8 points. So you have to go through all these points as it is a very important long question. You have to remember this. Okay. Still, I hope all of you having a clear idea about the requisites. If you still having any doubt, feel free to call me. Thank you.